स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम दूसरे भाग पर आ गए हैं जो हमारा चैप्टर हमने शुरू किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो आइए रिवाइज करते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ योर हिस्ट्री बुक, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। You have came to part second. So let's see what are the topics. A growing middle class, as we have learned that some people from the third estate became prosperous, became educated, and those were known as the new middle class. The new middle class people, some people within the third estate became prosperous and had access to education. New social groups emerged which were known as new middle class. These included businessmen, merchants who became rich by exports. These people, they exported different commodities to different countries, and hence they became rich as globalization happened and it was easier to travel from one country to another, both people and goods. So they became rich by exporting. These also included the professionals such as lawyers, doctors, administrative officials, etc. who were educated. तो ये जो नई मिडिल क्लास है इसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और जो शिक्षित वर्ग है जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एटसेट्रा, ऑल दीज पीपल केम इन द थर्ड स्टेट, बट दे वर some kind of prosperity was there. They were not so poor as the peasants and laborers or servants. All of them believed that no group in the society should be privileged by birth. तो वो जो विशेष अधिकार पहले और दूसरे स्टेट यानी कि नोबिलिटी और क्लर्जी को मिले हुए थे उसको ख़त्म करना चाहते थे. So they wanted to end the privileges. They wanted a society based on freedom and equal laws. वो ये चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें समान अधिकार हों सभी को और सभी को आज़ादी हो अपनी बात रखने की. So generally they wanted an end from the exploitation of the monarch and of the first and the second state people. Some important philosophers. So to inspire the third state people, that is the elite people from amongst the third state, the professionals, the officials, etc., and the common people also, the poor people also, there were some philosophers who inspired by writing different books, by inspiring the people through various ideas. Let's see some of them. First is John Locke. As you can see an image of John Locke, he has written the two treaties of government. So the two treaties of government says that refute to the doctrine of divine and absolute right of the monarch. तो monarch की जो विशेष अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, उनसे वो अग्री नहीं करते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे. नेक्स्ट इज जैक्स रोसे. Jacques Rousseau wrote The Social Contract. He said that the government should be based on social contract between the people and the representatives. लोगों और जो प्रतिनिधि है उनके बीच में एक सामाजिक एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिससे कि लोगों की बातें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक पहुंचाई जा सकें और लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके. Another philosopher who was there was Montesquieu. Montesquieu wrote The Spirit of Laws. In The Spirit of Laws, he proposed a division of powers between the government's various organs such as legislative, judiciary and executive. As you all know, legislative has the work of making new laws. Judiciary has the function of looking into the validation of laws and interpretation of laws, and the executive, they follow and implement the laws and the rules made by the legislature. This model of government was put forth into the USA for the first time. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनकी इस बात से सहमति जताते हुए ऐसा एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया. मूविंग ऑन, इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफर्स ऑन द सोसाइटी. तो ये जो तीन फिलोसफर्स हैं इंपॉर्टेंट, या और भी जो फिलोसफर्स रहे उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, उससे क्या असर हुआ फ्रेंच सोसाइटी पे ड्यूरिंग द 18th century. So ideas were being discussed at common places like salons,
कॉफ़ी शॉप्स एट्सेट्रा, इनके जो आइडियाज़ थे वो सेलों और कॉफ़ी शॉप्स और भी जैसे पार्क्स, गार्डन्स, लाइब्रेरीज, ऐसे ऐसी जगहों में डिस्कस किए जाने लगे। इसी के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से इनके आइडियाज़ बहुत लाउडली पढ़े जाते थे, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं खुद से और समझ नहीं सकते हैं, वो सुन के ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या डिस्कशन हो रहा है और किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आम लोग। इट इंस्पायर्ड एंड यूनाइटेड द पीपल अगेंस्ट द मोनार्क एंड हिज डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस। इसने लोगों को इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया कि जो मोनार्क ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, उनको कम किया जा सके। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो दो चीज़ों की मुख्यतः वो विरोध कर रहे थे, एक तो बढ़े हुए टैक्सेस और दूसरा जो विशेष अधिकार उनको मिले हुए हैं टैक्स कलेक्शन के और टैक्स ना देने के। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल अकाउंट। अब क्या हो रहा है, पूरी परिस्थिति हमें समझ में आ गई है। टैक्सेस बढ़े हुए हैं, पॉलिटिकली उन्हें राइट्स नहीं मिले हुए, इकोनॉमिकली वो बहुत पुअर हैं, तो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तीनों ही तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग। तो फिर अब लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि कैसे उनको एक रेवोल्यूशन लाना है। सो लुई 16 वांटेड टू इंक्रीज टैक्सेस। फॉर दैट ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल ऑन 5 मई 1789। स्टेट्स जनरल यानी कि एक पार्लियामेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन था। कब? 1789 और उससे पहले फ्रांस में। तो लुई 16 ने उसकी एक मीटिंग बुलाई जिसमें कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे फर्स्ट स्टेट के, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे सेकंड स्टेट के, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक दूसरे के सामने अपोजिट बैठे थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और वो सभी बैठे नहीं थे, बल्कि पीछे खड़े थे उन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पीछे। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें लॉयर्स, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड पीपल हु आर एजुकेटेड वर देयर। आगे चलते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इससे क्या हुआ, एक परिस्थिति बताई कि 300 लोग फर्स्ट स्टेट के हैं, 300 लोग सेकंड स्टेट के हैं और 600 लोग थर्ड स्टेट के हैं। परंतु ये जैसा दिख रहा है उतना सिंपल नहीं था, बिकॉज नॉट इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स वर गिवन। इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स नहीं थे, यानी कि 300 फर्स्ट स्टेट के लोगों को वोट करने का अधिकार या 300 सेकंड स्टेट के और 600 थर्ड स्टेट के लोगों को वोट करने का अधिकार हो इंडिविजुअली, अलग अलग से, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जबकि वोटिंग की स्थिति थी, जो फर्स्ट स्टेट के 300 लोग हैं उनका एक वोट, जो सेकंड स्टेट के 300 लोग हैं उनका भी एक वोट, और जो थर्ड स्टेट के 600 लोग हैं उनका भी एक वोट। तो ऐसे क्या हो गया, जो फर्स्ट 2 स्टेट्स हैं उनके 2 वोट्स हो गए और जो थर्ड स्टेट है उसका 1 वोट हो गया। तो जनरली वो मेजॉरिटी में नहीं आए, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग मेजॉरिटी में आ गए इस वोटिंग स्ट्रक्चर के चलते। तो इसके लिए ये भी एक समस्या थी कि वो अपनी बातें नहीं मनवा पाते थे। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो अपनी मांग और अपनी समस्याओं के 40,000 पत्र लेके आए थे। इसके साथ ही ईच स्टेट हैज़ 1 कलेक्टिव वोट एंड देयर वर नो इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल एंड इक्वल वोटिंग राइट्स। तो तीसरे स्टेट के ये लोग चाहते थे कि इक्वल और इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उतने ही वोट्स। मूविंग ऑन। तो अब क्या हो रहा है, एक नेशनल असेंबली का डिक्लेरेशन कर दिया थर्ड स्टेट के लोगों ने। दे थॉट दैट दे आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रांस बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन। So they decided that they will constitute a national assembly and draft a constitution for France. तो वो एक नया संविधान बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, 20th of June 1789 में एक मीटिंग बुलाई वर्सेल्स में, एक टेनिस कोर्ट में। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली। उस मीटिंग को जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई 20 जून 1789 को, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। द नेशनल असेंबली स्टार्टेड ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। पर जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वर्सेल्स में, सब जगह परिस्थिति उतनी शांत नहीं थी पूरे देश में। तो देश की परिस्थिति की बात करेंगे कि व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। सो द कंडीशंस वर वेरी सिवियर। व्हाट वाज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री
in the towns, what was happening? A severe winter resulted in a bad harvest for the farmers. Then what happened? The prices of bread rose. Bakers exploited the situation by hoarding supplies. Hoarding का मतलब होता है बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेना और तब उसको बाहर निकालना जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो. जब लो हो तब उस सामान को मार्केट में अवेलेबल ना कराना, उसको कहते हैं होर्डिंग. सो ड्यू टू दिस द एंग्री क्राउड स्ट्रॉम्ड इनटू शॉप्स. जो आम लोग थे उनको उनमें बहुत गुस्सा था, उनमें बहुत रोष था, तो वो ब्रेड शॉप्स में घुस गए और उन्होंने वहाँ पर लूट की. एट द सेम टाइम रूमर्स स्प्रेड दैट द ट्रूप्स हैव मूव्ड इनटू पेरिस. इसके साथ साथ ये अफवाह फैल गई कि पेरिस में राजा ने ट्रूप्स भेजे हैं और वो आम लोगों पर हमला करेंगे. तो अब हम जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था, कहाँ से? जब लोग 7,000 लोग इकट्ठे हुए टाउन हॉल में, उनमें से कुछ बेस्टील में घुस गए, प्रिजन में. अब वहाँ पे आ गई है हमारी स्टोरी, यानी कि बेस्टील की ये जो घटना है या लोगों की जो उपद्रव की घटना है या जो रेवोल्यूशन की क्रांति की घटना है, वो कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या कंडीशंस थी. उसके बाद अब हम आ गए हैं कहाँ पे? लोगों ने जब विद्रोह कर दिया और बेस्टील पे घुस गए क्योंकि रूमर्स फैले हुए थे. इसका रिजल्ट क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टील को डिस्ट्रॉय कर दिया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री साइड? रूमर्स स्प्रेड दैट ब्रिगेंड्स विल डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स. जो नोबल्स थे, उनके जो गुंडे थे, लुटेरे थे, उन्होंने आम लोगों में ये अफवाह फैल गई कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो नोबल्स हैं, उन्होंने एक गैंग भेजा है कुछ लोगों का जो उनकी जो पकी हुई फसल है उसको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं. सो नाउ व्हाट हैपेंड? इस डर में लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके बड़े बड़े मैंशंस थे और बड़े बड़े कैसल्स थे, वहाँ पे हमला कर दिया और उनके सारे जो क्रॉप्स की जो होर्डिंग कर रखी थी, जो जमाखोरी कर रखी थी, these crops were looted and the documents which had records of how much tax is to be collected from which farmer, which peasant, जो ऐसे जो टैक्स कलेक्शन के डॉक्यूमेंट है उनको जला दिया और जो काम की चीज़ें थी वो लूट ली, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने आग लगा दी. द peasants looted and hoarded grains and burned down documents containing records of taxes due. So as a result, large number of nobles migrated to neighboring countries. तो एक बड़ी संख्या में nobles यानी कि वो ऑफिशियल्स जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो पड़ोसी देश में भाग गए. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? द कॉन्सिक्वेंसेस. इन सब परिस्थितियों से जो क्रांति हुई उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए? एक मीटिंग बुलाई गई और लुईस 16 ने जो नेशनल असेंबली है उसको रिकॉग्निशन दे दी, यानी कि जो नेशनल असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसको उन्होंने मान्यता दे दी लुईस 16 ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, गांव और शहरों सभी तरफ एक क्रांति हो रखी थी. ही एक्सेप्टेड दैट सम ऑफ हिज पावर्स विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने ये एग्री किया कि उनकी कुछ शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा और जो पार्लियामेंट है वो या जो नेशनल असेंबली है वो उनकी कुछ शक्तियों की को रोक सकती है, उनकी जांच कर सकती है. ऑन 4 अगस्त 1789 the National Assembly passed a decree abolishing feudal system of taxes and obligations. तो ये डिक्री क्या होता है? एन ऑफिशियल ऑर्डर इज नोन एज अ डिक्री. तो नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था नोबल्स के द्वारा उसको अबॉलिश कर दिया और जो वो सर्विसेज देते थे फ्री में नोबल्स को, उसको भी अबॉलिश कर दिया. मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. तो जो क्लर्जी के मेंबर्स हैं उनको भी जो विशेष अधिकार थे टैक्स कलेक्शन करने का वो भी उनसे छीन लिया गया और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है उनको भी छीन लिया गया. तिथ वर एबॉलिश्ड एंड लैंड वॉज कन्फेस्केटेड. इन सभी से, यानी कि क्लर्जी की प्रिविलेजेस हटाने से और उनसे जो लैंड है, जो एसेट्स हैं वो लेने से लगभग 2 बिलियन लिवर्स के एसेट्स उन्होंने एक्वायर किए. यानी कि देखिए जितना उन पे कर्जा था उतना उसके बराबर का पैसा और एसेट्स उन्होंने वहां से रिकवर किए. Some new terms we have learned today. Let us understand what are these. First is manor. Manor is a large estate, large area which has a large house, the farmhouses and other fields and workshops and many other things, the factories which were there
a single person, that is a noble, owned all these things, and this large estate which contains a large house, a fort, etc., this is known as a manor. Next is chateau. A chateau is a very large castle or house belonging to the king or a noble. Brigands also we have learned, it is gangs of goons, लुटेरों का झुंड. Now moving on to the last part of our revision, that is assignment. Question number first, write a short note on books written by the following people. So in this you will write the name of the book as well as what was the major view or viewpoint of that philosopher. First is Jean-Jacques Rousseau, second is John Locke and third is Montesquieu. इन तीनों के ही द्वारा लिखी गई किताब और उसमें बताई गई प्रमुख बात. Question number 2, discuss the structure of the States General before June 1789. जून 1789 से पहले स्टेट्स जनरल का क्या स्ट्रक्चर था, यानी कि कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पास क्या वोटिंग राइट्स थे, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है और आंसर लिखना है. Question number 3, when and where did the representatives of the third state declared themselves as a national assembly and started drafting a constitution? कब और कहाँ जो नेशनल असेंबली है उसने अपने आप, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शुरू किया. क्वेश्चन नंबर 4, when did the national assembly pass the decree abolishing feudal dues and privileges by birth? जो फ्यूडल टैक्स कलेक्शन सिस्टम है और जो क्लर्जी के प्रिविलेजेस हैं उनको कब अबॉलिश किया नेशनल असेंबली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.